Good morning, students. Today we are going to study our second poem, An Elementary School Classroom in a Slum. This poem has been composed by the Stephen Spender. In this poem, the poet wants to convey the inequalities between the students of an elementary school with the student of an ordinary school. He is showing the lack of facilities between both of them. Uh, about Stephen Spender, he was born in 1909 and was died in 1995. Was an English poet and an essayist. He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930. Berlin is situated in Germany. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. He was a kind of person who was so much interested in politics and all, and that's why he left his college without taking a degree. And when he went to Berlin, he declared himself as a socialist and pacifist. Books which has been written by Spender include poems of dedication, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography, Word Within Word. In elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. As I have said to you before, in this poem, the poet wants to describe the social injustice and the class inequalities which has to be faced by the children who has lived in the slum. Before you read, have you ever visited or seen an elementary school in a slum? What does it look like? Okay, the next phase is of this particular sentence is, have you ever visit to the people who are living in a kind of hut things, झोपड़ी type जो होती है. What are the condition of the people who are living there, what their children are doing whole day? Definitely the answer will be they are not going to school. If they are going to school, the school is not very well maintained. Uh, the real word and the word which they have seen in the books are quite different. That has been described in the poem. So let's start our poem. Far, far away from gusty waves, these children faces like rootlet weeds. These children faces. This has been given here. Children faces means the faces of the children looking like the rootless weeds. Means they are looking very weak. The hair torn round their pallor. Their hair is not in good condition. The tall girl with her weight down head. There is a tall girl whose weight down head means she was so weak that he cannot properly maintain his head condition. Her head was down towards his neck. The paper seeming boy with rat size. Boy बॉय. तो बॉय कैसा लग रहा है? लुकिंग लाइक अ पेपर सीमिंग बॉय. पेपर जैसा पतला है, रेड साइज एंड द स्टंट अनलाइकली हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फायर्स जनरल्ड डिजीज. हायर मीन्स होता है उत्तराधिकारी. ये अपने पिता की बीमारी का, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी है. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. अब वो बैठ के अपने लेसन को पढ़ रहा है अपनी डेस्क से. एट बैक ऑफ द डिम क्लास, धीमी रोशनी वाली क्लास में. वन अननोटेड स्वीट एंड यंग. छोटा सा है बच्चा, प्यारा सा बैठा है, लेकिन वो किसी की नज़र में नहीं आ रहा. और वो देख रहा है खिड़की के बाहर. हिज आइज लिव्स अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस. वो अपने खिड़की के बाहर बैठ के देख रहा है स्क्विरल्स, यानी गिलहरियाँ जो इधर उधर कूद रही हैं ट्री रूम में. एंड अदर दिस, इस तरह की चीज़ों को देख रहा है. ऑन सोर क्रीम वाल, गंदी दीवारों में. डोनेशंस जो कि किसी के चंदे देकर बनवाई गई हैं. स्पीकर्स हेड, वहाँ पर एक शेक्सपियर्स का एक चित्र लटका हुआ है. क्लाउडलेस
एट डॉन, जैसे कि चंद्रमा जैसा वो दिख रहा है। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, वहाँ पर एक सीनरी भी लगी हुई है जिसमें बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बेल्ट चर्च है, फ्लावरी टायरोसिस वैली, बढ़िया सा चित्र वहाँ पर लगा हुआ है सीनरी का। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, उस ओपन हैंडेड मैप वहाँ पर एक मैप भी लगा हुआ है और वो जो मैप है वो दुनिया का है। एंड येट, और फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडो नॉट दिस मैप, ये विंडो ही है, ये मैप नहीं है, ये विंडो ही है, देयर वर्ल्ड, इस विंडो के बाहर जो दिख रहा है वो उनके लिए संसार है, ना कि वो संसार नहीं है जो इनको मैप में दिख रहा है या उस पिक्चर में दिख रहा है। वेयर ऑल देयर फॉर्च्यून फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पर उनको नहीं पता कि उनके भविष्य के साथ क्या होने वाला है। पेंटेड विद अ फॉग यानी धुंधली छाई हुई है। आगे देखिए, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, उनकी जो गलियां हैं बहुत पतली हैं, लेड स्काई भरा हुआ है यानी कि धुआं ही धुआं भरा हुआ है उनके आकाश में, यानी कि वो जो यहाँ से देखते हैं आसमान को, उनके आसमान में धुआं भरा हुआ है। फार फार बहुत बहुत दूर है उनका घर, कहाँ से, रिवर्स से, केप से, पेड़ों से, स्टार्स ऑफ द वर्ड्स यानी कि चकाचौंध भरी दुनिया से उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट, इन बच्चों के लिए शेक्सपियर कैसा है, भले ही हमारे लिए शेक्सपियर बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके लिए शेक्सपियर विक्ट है। और जो मैप की तस्वीर है उनके लिए बैड एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील फॉर लाइफ, क्योंकि उस जो चित्र में है बढ़िया जहाज़ हैं, सन एंड लव, प्यार भरी हुए चीज़ें भरी हुई हैं उसमें, उनके लिए वो सब झूठ है। फॉर लाइफ दे स्टाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्टेड होल्स, क्योंकि वो जो ज़िंदगी जीते हैं वो जरा से मकान में रहते हैं। एंड फ्रॉम फॉग टू द एंडलेस नाइट, और अंतहीन रात्रि रहती है उनकी। ऑन देयर स्लैग हीप these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, उनकी जो हालत है वो बहुत ख़राब है, उनकी हड्डियां और खाली है, उनके शरीर पे मांस नहीं है, और उन्होंने जो चश्मा पहन रखा है स्टील फ्रेम का है और धुंधले कांच वाला है। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे कि कांच के टुकड़े पड़े हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका सारा समय बीतता है फॉगी स्लम में। So blot their maps with slums as big as doom. Unless governor, inspector, visitor, these map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. इसको देखिए, जब तक कि हमारे जो गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, विजिटर हैं, ये जब तक ये मैप को जो उनको खिड़की के बाहर दिखाई दे रहा है उनका रियल वर्ल्ड नहीं बना देते हैं, तब तक उनकी लाइफ कैटाकॉम्ब यानी कीड़े मकोड़े जैसी रहेगी। ब्रेक ओ ब्रेक, अब इसे तोड़ो, इस ये जो बीच में दीवार खड़ी है कास्टिज्म की, या ये जो क्लासिसिज्म की दीवार खड़ी है, ओपन टिल ब्रेक डाउन, तब तक तोड़ो जब तक ये टूट ना जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू द ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड, वो इन सबसे अपील कर रहा है, ये सारे जितनी अथॉरिटीज़ होती हैं इनसे अपील कर रहा है कि इन दीवारों को तोड़ो, और तब तक तोड़ो जब तक ये टूट ना जाए, और टूटने के बाद इन बच्चों को दिखाओ ग्रीन फील्ड्स and make their world run azure on gold sands and their tongues run azure on gold sands, यानी उनका कैरियर बनाओ, उनका भी कैरियर सुनहरा बनाओ। एंड लेट देयर टंग्स रन naked into the books and white and green leaves open history there whose language is the sun, और अब इनका भी समय ऐसा बनाओ कि उनकी जबान बिना रुके किताबों पे दौड़े, वो भी हरे भरे खेत देखें, हरियाली देखें, यानी ज़िंदगी में समृद्धि देखें। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, क्योंकि इतिहास उन्हीं का बनता है जिनकी लैंग्वेज अच्छी होती है। तो ये आपकी पोएम ख़त्म हुई। कल इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अपने क्लास में, और हम इसके लिए इससे रिलेटेड एक टेस्ट भी लेंगे जो दोनों पोएम मैंने आपको आज और कल पढ़ाई है। थैंक यू वेरी मच।